Life is a beautiful combination of ups and downs. You will have your own set of struggles, but you will also get time where you will feel your best. I have somebody who had his own set of struggles, but still came out like a winner. So, Anas, very, very warm welcome to you. How are you? I'm fine, and thank you for such a good welcome. अनस, मैं यही सोच रही थी कि जो तुम्हारा नाम बहुत यूनिक है, सो आई एम वेरी वेरी श्योर कि तुम्हारे एस्पिरेशंस और ड्रीम्स भी बड़े यूनिक ही होंगे. सो टेल मी समथिंग अबाउट योर ड्रीम्स. मेरा पहला ड्रीम तो ये था कि आई वांट टू हेल्प पीपल. ये सबसे पहला ड्रीम था. और फिर मैंने सोचा कि व्हाट कैन आई डू, कि मैं किस तरह से हेल्प कर सकूँ. तो फर्स्ट आई थॉट ऑफ थिंग कि यूपीएससी एंड ऑल, बट आई थिंक कि उससे ज़्यादा अच्छी फील्ड जो है मेडिसिन है. अगर आप ह्यूमन बॉडी, जो कि शायद कह सकते हैं सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है जो हम बना नहीं सकते, जिसको भगवान बनाता है, उसको अगर आप ट्रीट कर सकें तो वो खुद में एक बड़ी चीज़ है. तो दिस वॉज माई ड्रीम एंड I'm on the way to achieve it. I've still not achieved that, but I'll try my best and I hope I'll come out good. Definitely. In fact, when you thought of becoming a doctor, I'm sure your parents must have helped you a lot. So how did you come on this decision and what was the process like? Actually, my parents are doctors. So from the very beginning, from when I was a little kid, I've seen them. I've seen how people respect them, the amount of the position they have in the society, the amount of respect they get from their patients who literally treat them like God. So this was something which really motivated me, and I also wanted कि यार ये आदमी आए मेरे को भी ऐसे बोले कि तुम तो भगवान हो, तुम भगवान हो ऐसे. तो this was my constant source of motivation. But yeah, over time I became a little mature and I have come to know about the difficulties of this profession, but at the same time I would love to be a great surgeon someday. Hopefully. So, when you decided doctor है, it's going to be really tough also because obviously जब डॉक्टर बनने का डिसीजन लिया है तो उसी तरीके की प्रेपरेशन भी करनी पड़ेगी. So how did Akash Byju's enter your life? Akash Byju's came into my life in I think 2017 जब मैंने एंथे का एग्ज़ाम दिया था. आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन, वो मेरे सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ था. और मैं बहुत ही वेगली, मतलब मैं उस टाइम तक कोई प्रिपरेशन, कोई एग्ज़ाम के लिए नहीं करता था. आई यूज़ टू एन्जॉय स्टडिंग साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स. बट एंथे था तो वो पहली बार मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि आई वॉन्ट टू अचीव दिस, कि मेरे अंदर एक अलग सी आग थी कि ओके दिस इज समथिंग एंड आई वांट टू क्रैक इट इन सम वे और द अदर. सो आई प्रिपेयर्ड रियली हार्ड फॉर इट एंड आई इवेंचुअली गॉट माई वे. आई गॉट 100% scholarship in that. So that was a good source of motivation, and from that point onwards Akash entered into my life and I don't think it has ever come out since then. So उसमें फिर मैंने प्री फाउंडेशन कोर्स किया 9th और 10th में, और इवेंचुअली मैंने डिसीजन जब लिया था कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, तो 11th एंड 12th में भी आकाश की हेल्प थी मेरे साथ. So that has been really helpful. So what do you think is the difference, from rest of the coaching institutes or whatever? How different an Akash, what is the speciality about Akash? How did you feel that this is my kind of place? I think the best thing about Akash is कि जो उसकी फैसिलिटी है, they have so many centers connected all across the country, और उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, जैसे आप कोई और कोचिंग्स देखेंगे वो एक कोई जगह पे सेंट्रिक हैं वो, और पूरे ज़्यादा उनका इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं. बट आकाश है वो हर जगह स्प्रेड है. वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म चलता है, वो कॉमन करिकुलम है सबके थ्रू, और वो जो सेंटर्ड उनकी एजुकेशन होती है, जो ये चीज़ एकदम परफेक्ट है आकाश की. और फैकल्टी है, मतलब आप ये सोचिए कि लॉकडाउन में भी जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऑनलाइन कोई इतना अच्छे से टीच कर सकते हैं. ऐसे मेथड्स हो सकते हैं कि आप इन एप्लीकेशन से, इन तरीक़ों से आप कॉल करें. तो आकाश हैज़ बिन वंडरफुल. So you mentioned online coaching or online training बहुत अच्छी थी. Can you tell me something more about it? How it was actually like a, I would say well thought thing. Did teachers help you exactly जैसा ऑफलाइन में ट्रीटमेंट होता है वैसा मिला या नहीं? तो पहले मैं ये कहूँगा कि मैंने अपने कुछ जो बाकी कोचिंग्स में और मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे मैंने बात की, तो उनका क्या था, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही, जैसे ही कोविड आया तब से उनकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन करना शुरू कर दी, क्योंकि उनके अपने कोचिंग की तरफ से उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं था, उतनी हेल्प नहीं मिलती थी. बट मेरे साथ ये केस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो मेरे टीचर्स थे, मेरी फैकल्टी थी आकाश की, उन्होंने
दम नहीं छोड़ा। मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना डिप्रेसिंग टाइम था हम सब के लिए, बट तब भी वो लगे रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू मोटिवेट। और ये आप ये होता है कि आप अपने से ऊंची पोजीशन वाले को देखते हैं तो यू हैव दैट थिंग, यार अगर ये मुझसे चाहते हैं तो मुझे ये करना है। तो ये जो चाहत थी टीचर्स की, ये कभी ख़त्म नहीं हुई। और आई थिंक आज जहाँ मैं हूँ उसके पीछे आकाश का बहुत बड़ा रोल है इसी में। दैट्स एक्चुअली इंस्पायरिंग। लेकिन अब बात करते हैं फन टाइम की। सो व्हेन यू आर नॉट स्टडिंग, व्हेन देयर इज़ नो आकाश बायजूस इन योर लाइफ, व्हेन इट्स जस्ट यू, हाउ डू यू डील विद स्ट्रेस एंड हाउ डू यू कोप विद द स्ट्रेस एंड स्टडीज़ का इतना प्रेशर? आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट स्ट्रेस इज़ कि स्ट्रेस आप उसको नेगेटिव वे में मत लीजिए। स्ट्रेस आपकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई स्टेप पर होगा, आप उसको पॉजिटिव सेंस में लीजिए। जैसे अगर आप बैट्समैन हैं, आपको रन चेस करना है, आपके सामने एक टारगेट है, तो आप भले ही स्ट्रेस्ड हैं लेकिन आप उस स्ट्रेस में ही अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरे साथ भी यही चीज़ है कि मेरे पर स्ट्रेस है कोई चीज़ का कि ओके यू हैव टू डू इट। आई नो कि ठीक है, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम मी, तो आई हैव दैट थिंग कि ओके आई हैव टू परफॉर्म। मैं उसको स्ट्रेस की तरह से नहीं लेता। बट तब भी अगर कभी कभी आप थोड़ा परेशान होते हैं तो मेरे काफ़ी हैबिट्स हैं। आई थिंक बहुत सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं गिटार बजाता हूँ, मैं कई कभी शायरीज़ भी लिखता हूँ, तो वो सब मैं करता था। कभी ऐसा नहीं हुआ तो सीधे अपने फ्रेंड्स से मैंने कॉल कर लिया। मेरे फ्रेंड्स काफ़ी सपोर्टिव हैं, अच्छे हैं, या फिर कोई नॉर्मल गाने सुन लिए, तो ये मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर का काम करता है। इंटरेस्टिंग। सो नीट एस्पिरेंट्स इस मोमेंट आपको देख रहे हैं एंड दे हैव देयर ओन सेट ऑफ स्ट्रगल्स एंड डिफ़िकल्टीज़, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं सिर्फ एक ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी हो जाए, आप मतलब हारिए मत। बहुत ही टिपिकल लाइन है, बट आपका जैसे आप जिस पोजीशन पे अभी हैं और आप 5-6 साल बाद कहाँ रहेंगे, इट हैज़ नो कोरिलेशन। वो बस आपकी कंटिन्यूस मेहनत है, आप कहाँ तक पहुँच सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो और एक और चीज़ जो मैंने कहा कि आप स्ट्रेस को एक नेगेटिव वे में मत लीजिए कि यार मुझसे हो नहीं रहा। आप उसको चैलेंज की तरह से लीजिए कि ओके, किसी ने मुझसे एक्सपेक्ट किया तो ठीक है, मुझे करके दिखाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो समथिंग लाइक दिस। अनस की लाइफ टिप्स मैं हमेशा फॉलो करने वाली हूँ लाइफ में। एंड इफ़ यू ऑल्सो वांट कि स्ट्रेस आपकी लाइफ से आउट हो जाए और एक राइट मेंटोर आपकी लाइफ में एंटर करे, तो आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एक डेस्टिनेशन आपकी सारी कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में कन्वर्ट करने वाला है।